हेलो एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीनियर्स, जूनियर्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और इस एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू है जिसके बिना हम लोग की एमबीबीएस एलएलआरएम मेरठ मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की एंट्री कभी यादगार ना होती। सो हमारी तरफ से वार्म वेलकम टू रमेश सर। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है और इनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने के लिए डॉक्टर विनय शर्मा, जो कि खुद एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और मेरे बैच में थे। It's proud privilege to introduce sir, respected sir, having more than 50 years of anatomy teaching experience in the UG and PG, more than 70 research publication and greater than 300 citation of these research publications. सबसे मजेदार बात यह है कि सर ने बहुत सारे अवार्ड अचीव किए हैं और सबसे जो शानदार अवार्ड है वो पिछले साल ही अचीव किया है पोस्ट रिटायरमेंट। सर ने बेस्ट पोस्टर अवार्ड अचीव किया है नेटकॉन गड़क के अंदर। लीना के पास जल्दी रिसीव करने आएंगे अरुणाचल में। सर कई कमेटीज के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर रहे हैं। सर प्रेसिडेंट ऑफ यूपी चैप्टर ऑफ एएसआई रहे ट्वाइस, 2 बार। above all, sir is very positive and humble person, a great teacher of anatomy. लिटरली स्पीकिंग, बचपन में जैसा हम सुनते थे ऐसे ऑफ द टीचर, वो ऐसे सर को देख के और सर को सोच के कभी भी लिखा जा सकता है। वेरी वार्म वेलकम टू सर फॉर इंटरव्यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सर, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में कब हुई, कैसे हुई? जब आप आए थे तब क्या सिनेरियो था और आपने आराम से एडजस्ट किया, क्योंकि इट इज डिफरेंट प्लेस, इट वाज अ डिफरेंट प्लेस फॉर यू। सो सर, आप अपना जर्नी प्लीज हमें बताइए। आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ टीचिंग फ्रॉम कानपुर JSVM मेडिकल कॉलेज in 73, and then 75 December I came to LLRM Medical College, joined there as a demonstrator, and because I was already selected as lecturer via Public Service Commission and got the lecturer appointment in March 1976. So actually from March 1976 my journey has begun. At that time I was not able to speak very fluent Hindi, but I am able to understand it. And I mean, the LLRM Medical College campus was a wonderful campus. I mean, we lived like a family. Lena will understand. I mean, there was no difference, and we all lived like a family and supporting each other well. At that time, a number of faculty had joined the LLRM Medical College. Dr. Adip Mitra in medicine, and so many faculties have joined recently at that time, and it was a wonderful journey. With the love and affection of the students, of my colleagues, my seniors, my juniors, it made my life memorable in Medical College Meerut. I can never forget the LLRM Medical College Meerut. What a beautiful journey, sir. अगला सवाल लेते हैं विनय। Yes sir. So my question is, your best friend, sir. I cannot just point out only a single person. Because when we joined there initially, most of the faculty was either bachelors or post bachelors. We lived together. So just to name a few, how can I name individual? Very difficult question. Not one, sir. Not one, sir. More than one. Dr. Adip Mitra was a good friend. Dr. KK Divedi, my family friend. I mean, we were adjacent to, I mean, our houses were adjacent. Dr. R.P. Agarwal, whose daughter was your senior. Dr. 97 batch, Rachna Agarwal. Okay. Rachna Agarwal. Dr. R.M. Bajpai, my colleague. Dr. Shakuntala. Dr. Nareshwar Nath in chest diseases department. Dr. S.K. Bajpai, statistician, he was very supportive to all of us. Dr. S.R. Arora, so many people.
Sir, I think if sir starts taking names, हमारा पूरा इंटरव्यू उसी में चला जाएगा क्योंकि सर को चला सारे जाएगा, लोग वाकई चाहते हैं। वाकई। एक्सीलेंट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही जानती हूँ कि मैं तो सर क्या मतलब मुझे शायद मेरा पैदा होना भी सर ने अटेंड किया होगा इस हम लोग का फैमिलीज को, क्योंकि बचपन से ही सर और सर के बच्चों के साथ ना हम लोग हमेशा घर जाना आना रहता ही था, बिकॉज हम लोग सब कैंपस में रहने वाले थे। सर आज वाजपेयी सर नहीं है, शकुंतला मैम भी नहीं है, आप लोग का उन लोग का याद तो आता ही होगा। सर उनके साथ बैठा हुआ कुछ समय ऐसा बताइए जो मतलब यादगार रहा हो आपको। I mean, Dr. Shakuntala was, to say, is a very good teacher, and she loved all the students very much. She was very cooperative, although very strict. Dr. Bajpayee, because of his, handicap, he may not be able to come to the dissection hall frequently to do the dissection. But whenever he teaches osteology, he spends a lot of time to learn and teach you. Dr. Muralidhar was also there, who taught you also. He is also no more. He draws good diagrams and Urdu poetry, and he speaks about so many things, history and all. He is very much interested in history and especially well versed in Urdu also. Yeah, and Dr. Murli was used to play flute, sir. He was flute. an excellent flute player. Yeah, flute and as well as the violin. Wow. He also plays violin also. Sir, I think Vajpayee sir very fond of शायरी. हाँ. बिल्कुल सर, अगला सवाल लेते हैं विनय. Sir, my question is, are you still in touch with the fellow colleagues of the LRM Medical College, sir? Yeah, definitely. So we have a group of LLRM ex-teachers. हाँ, शायद एक WhatsApp group भी है, in WhatsApp sir. group. हाँ, In WhatsApp group we have. We daily interact with each other and exchange views and other things, and know about their family. We still get remain in connection. Wow. There is a और group in ये WhatsApp. तो हम लोग को वाकिफ ही है कि जब सर कभी भी मेरिट आते हैं तो लगभग कोशिश होती है कि सभी लोगों से मिल के जाएं, है ना आई सर? थिंक मेरिट ही नहीं सर, जहाँ भी जाते हैं लोग सर के पास अपने आप ही चले आते हैं। जब मेरिट में सर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जितने भी कलीग्स हैं उनके सबके साथ संपर्क हो सके। हाँ, तो विनय जो है आपके साथ कई बार आप ले गए थे, कई बार गए और मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं अपने सभी टीचर्स से, पुराने टीचर्स से सर के थ्रू मिल पाया। मुझे पता भी नहीं था, कई बार मैं सर के साथ गया तो मुझे पता लगा हाँ ये टीचर हमारे भी मेरिट में है। बढ़िया। विनय, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक अपना आप सुपर कंप्यूटर ब्रेन जो आपके पास है उससे बताइए, आप हर बच्चे को, हर बैच के हर बच्चे को कैसे याद रखते हैं? ये ना हम लोग का इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ना कि मेरा टीचर मुझे याद रखा। सर ये कैसे कर लेते हैं? मतलब MBBS एंट्री पॉइंट पे अगर आपको कोई ऐसा एक्नॉलेज कर देता है ना सर, इट इज अ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, मतलब इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस। और लीना, ये सवाल मेरे ख्याल सारे स्टूडेंट्स का है। ये सारे स्टूडेंट्स, सारे LLRM के स्टूडेंट्स का है। ये आपका ये नितिन लोग से, सीनियर्स लोग से भी बात कर रहे हैं तो सब कोई ले दे के ना रमेश बाबू सर का इंटरव्यू में पूछा सर याद कैसे रखते हैं, मतलब सबको इतना गदगदा देते हैं ना सर, एवरीबडी सो एकदम स्पेल बाउंड आपसे ना कि आप इतना ख्याल रखते थे। You spend a lot of time with us in the anatomy department. Yes, weekly at least 20 hours, more than 20 hours teaching is there. There is a dissection hall, and where there is close interaction is possible with all the students. And whenever I take the attendance, I used to call all the names. So for that particular year, definitely repeated, taking attendance and interaction, and even at the time of admission, I used to be in the admission committee checking all the documents, and you came with your uncle or your father or your brother,
I mean, You would know. during that period, I remember definitely. And then I tend to forget because I cannot remember for all the batches. Okay, I remember the faces. Now, because I become old, I tend to forget also. But at that time, definitely I remember because I like to interact with the students. I बिल्कुल mean, सर students मैं कुछ कहना चाहूंगा नितिन। प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सके, मेरे पास आके विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे बात कर सके. That kind of bridge should be there between a teacher and a student. Then only that is possible for any kind of improvement. मैं कुछ भी बोल के चले जाऊं, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो मुझे कैसे पता जब तक मैं इंटरेक्ट नहीं करता. So that interaction is possible in the dissection hall 2 hours. Previously it was 3 hours dissection hall. तो 2 घंटे में आपके साथ रह के जो है आपके बारे में, आपका किसके साथ आपका उठना बैठना भी है, सब कुछ हमें याद हो जाता. सर एक्चुअली अपनी सुपर पावर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं. 10-12 साल से तो मैं भी एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ. काफी सारे डॉक्यूमेंट मैंने भी चेक किए हैं, स्टूडेंट मैंने भी देखे हैं कुछ, और मैं कोशिश करता रहा कि मैं सर की तरह से नाम याद कर सकूं. आपके जैसी मेमोरी बहुत मुश्किल है लोगों के पास होना, ये बात तो पक्की है सर, मुझे ये 100% है. इसीलिए विनय सर रमेश बाबू हैं और हाँ. मैं नितिन भट्ट तो हूँ, तो विनय बाबू हो. विनय बाबू. यस आई थिंक अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विनय. अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं. यस सर, वही ये वाला सवाल आपकी सुपर पावर को और एक्सप्लोर करेगा सर. हाउ यू वर एबल टू कैच द प्रॉक्सी विदाउट ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट की तरफ देखे बिना आप कई बार प्रॉक्सी पकड़ लेते थे, ये कैसे संभव था सर? एक आपकी क्लास थी जिसमें प्रॉक्सी नहीं हो पाती थी. नहीं, इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि I mean I can recognize your voices. Yeah. Even in lecture theater, I can recognize from which direction your voice is coming. एक नजर में आप कहाँ बैठे हैं तो पता है. तो दोस्त बैठा हुआ है डेफिनेटली. मुझे मालूम है विनय किसके साथ उठना बैठना है ना, वो किसका दोस्त है. तो sometimes I am able to catch the person who has given the proxy also. Because I am able to link. सर ने समटाइम विनय सर ने समटाइम का यूज किया है. सर आज मैं इस फोरम पे एक चीज एक्सेप्ट करता हूँ. एक बार मैंने प्रॉक्सी मारी थी और नहीं पकड़ा गया था. अच्छा नितिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा नितिन, आप बताओ, आप तो सेकंड स्टोर कि इज इट पॉसिबल टू लर्न a pitch of voice? No, इतना तो रमेश सर, और कोई नहीं. हाँ, बिल्कुल ये सबके बस की बात नहीं है सर. ये मैं तो कह रहा था आपके पास कुछ सुपर पावर है जो है. अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रॉक्सी वाला मजेदार इंसिडेंट हुआ है जो आप हमें बताएंगे? ऐसे तो कई बार पकड़ा गया, तो कई बार जो है जो कल्प्रिट तो एब्सेंट मार करके उन्हें भगा दिया क्लास से, वो बाद में आके जो है माफी मांगा है. तो वन मोर थिंग, जैसे सीनियर आपको जो है जूनियर को कुछ चीज बताता है, तो आई बिलीव दैट मेरे बारे में ये तो जरूर बताते होंगे कि उनका क्लास में प्रॉक्सी मत देना. सर बिल्कुल. गिव्स एन आइडिया कि भाई इनके क्लास में आप शोर नहीं मचा सकते हैं, इनके क्लास में आप मजाक नहीं कर सकते हैं, इनके क्लास में आप जो है वो प्रॉक्सी नहीं दे सकते. शकुंतला मैडम का क्लास के बारे में भी बताया होगा कि मैडम 9 बजे अंदर चले जाती है, लेक्चर थिएटर बंद हो गया, शी विल नॉट परमिट एनीबॉडी टू एंटर. तो लोग जो है वो 8:55 पे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं. 9 बज गया, मैडम अंदर चले, दे डेयर नॉट एंटर बिकॉज दे नो. और सीनियर्स उनको पहले भी बता चुके थे. तो वो थोड़ा से एक आइडिया आता आपके दिमाग में कि इस पर्टिकुलर टीचर का क्लास में मिस नहीं करना चाहिए या प्रॉक्सी नहीं मारना चाहिए, तो सीनियर्स आपको बताते चले आते. बिल्कुल सर, हमको तो सीनियर से बताया. प्रॉक्सी से रिलेटेड एक बात है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते हैं ना, जैसे लेनिन, कुंजैंग और हमारे एशियन थंग था, तो इनमें जेंडर गायब था. लेनिन का तो ठीक था. तो ये लोग एक दूसरे की ना बाकी सब्जेक्ट्स में खूब प्रॉक्सी लगाते थे. एशियन थंग और ये
हमारा वो कौन थी, ओंगमू, कुंजांग, कुंजांग। ये लोग एक सर दूसरे क्या कभी ऐसा हुआ है किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए प्रॉक्सी लगाई हो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। वो तो तुरंत पकड़ सर वो भी इस क्लास में तो नहीं होगा। मुमताज हो सकता है, मुमताज। हाँ बिल्कुल आप तो किया है, मुमताज है, कुछ लोगों लेकिन ने मुमताज कुछ लोगों ने है। किया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया चलिए है। इस बिल्कुल। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लीना, अगला सवाल। सर, आपने कभी कोई डिफिकल्ट स्टूडेंट्स फेस किए थे, और मतलब उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हुए गए थे? जैसे कुछ कुछ होते हैं ना, अक्खड़ एकदम सुनने वाले नहीं है, इस टाइप से कोई आपको जनरली नहीं मिलते थे? नहीं, मिलते हैं। सर कैसे पढ़ाई में डील बहुत करते थे? नहीं, मैं हॉस्टल में वार्डन रहा हूँ, असिस्टेंट वार्डन रहा हूँ। वहाँ बहुत लोग ऐसे मिलते थे कि जो दे डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत लोग हैं ऐसे कि, लेकिन इत्तेफाक से या जो भी आप कहें कि आई एम ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, आई नेवर शाउटेड, आई ट्राई टू मेक सेंस टू देम। वो लोग जो है अपने आप मुझे देख के जो है अपना शर्मिंदगी करते थे, तो मेरे सामने जो है दे वांट टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड्स, सो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वे मेरे सामने ऐसे कोई गलत चीज ना करें। हॉस्टल में कई बार ऐसे होता था कि कोई झगड़ा हुआ, मेरे पास फोन आया रात में 12 बजे, मैं निकल रहा हूँ, तो मेरा जाने के बारे में या हॉस्टल पहुंचने के बारे में किसी को पता चल गया, पूरी हॉस्टल जो है अपने यहाँ विकेट हो जाता था, सब अपने कमरे में चले जाते थे, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी कॉट बाय रमेश बाबू। रिमेंबर देयर फेस, एवरीथिंग, इवन इन डार्कनेस आई कैन रिकॉग्नाइज देम। अरे तो सर, भाग जाते थे। डार्कनेस पे एक किस्सा याद आया। अभी हमने डॉक्टर फैजल का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि आपने बोला था कि फैजल, मैं तुम्हें तुम्हारी परछाई से पहचान सकता हूँ। Because Faisal Amir was very close to me. He's a very good artist. Excellent. Yeah. Even writing is excellent. Diagrams are excellent. Yeah. Even now I have his anatomy manual with me. हमने उनसे मांग के ले लिया था, वो मैनुअल अभी भी मेरे पास है। ये भी बताया उन्होंने कि आपने प्रिजर्व किया था उनका मैनुअल। हाँ, अभी भी मेरे पास अभी भी है। क्या बात है सर। सर, आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतने जनरेशंस ऑफ बच्चों को जाते हुए देखा है अपने अंडर, तो पहले के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स में बहुत अंतर है? आपको कुछ चेंज लगता है? नहीं, डेफिनेटली पहले थोड़ा से दे वर मोर ओबीडिएंट, क्या कहें, लर्निंग में जो है ना थोड़ा से डेफिनेटली दे हैड मोर इंटरेस्ट। नाउ जो बच्चे आ रहे हैं वो उतना ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखाते हैं, उनका बस एक किसी तरह पास हो जाए, so they don't want to learn actually side teaching on the board and learning through a video in YouTube. It makes a lot of difference, so there is no face to face interaction, है ना। जैसे हम क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, I mean you may be able to ask a question, ठीक है, इंटरप्ट करके पूछते थे, इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ बोल रहे हैं, whether you understood or not, I cannot say anything. ये आपके ऊपर है कितना आप ग्रास्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो यूट्यूब ओके, इट मे बी सप्लीमेंट्री बट इट कैन नॉट टीच यू एवरीथिंग। क्लास में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अभी भी मैं प्रेफर करता हूँ कि ब्लैक बोर्ड में चार्ट पीस लेके पढ़ाऊं। लीना, विनय, हमारे पास टाइम जो है कम है। विनय, अगला सवाल। Sir, your thoughts about the ragging, sir? I don't I prefer it. I don't support it definitely. As a senior junior को डायरेक्शन देना चाहिए। वो डायरेक्शन जो है आप रैगिंग के बिना भी दे सकते हैं, है ना। डेफिनेटली जो
एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, जैसे कानपुर का या मुजफ्फरनगर का बच्चा मेरठ में पढ़ रहा है, मुजफ्फरनगर का ग्रुप बन जाता, उन्हीं के साथ वो इंटरेक्शन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सीनियर जूनियर को डायरेक्शन देना चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे उसको बुक्स दे के सपोर्ट करें। तो ये इतना तो सही है, लेकिन रैगिंग के नाम से जो लिमिट्स एक्सीड करते हैं, दैट नोबडी विल प्रेफर। वेरी I वेरी don't गुड support. थॉट। मैं भी मानता हूँ इस जीरो टॉलरेंस, इवन इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी देयर इन द फॉर्म ऑफ रैगिंग। क्योंकि एक डिफरेंस है नितिन, हम जब बात कर रहे थे ना, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें, या फिर हम सीनियर हुए तो हमें लगा कि हाँ थोड़ा बहुत, बट जब अब पेरेंट्स को देखते हैं विचलित होते हुए उन इंसिडेंट्स से, तो हमें लगता है कि अब कुछ दिनों बाद ही हम में से कई लोगों के बच्चे मेडिकल कॉलेज में होंगे, और तो इस सवाल को आंसर करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से दैट दिस शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर रैगिंग। जी सर। नहीं अच्छा बिल्कुल। सर, आगे एक मजेदार बात, आपको आपका निकनेम पता है? कब पता चला? नहीं, हमें नहीं पता, हमने कई बार पूछा भी, स्पेशली मैं। अरे सर, आपको नहीं पता सर? आपको तो लगा कि आपको पता मैंने होगा। बताया है, मैंने बताया आपको मैडम, सर। नहीं मैडम को किसने बताया अभी शायद, हाँ। वाराणसी सर, गए थे, आपने वहाँ कभी- किसने बताया था? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों था? सर मेरे लिए ना नहीं। आपका एक और निकनेम आपके लिए याद आया है मुझे। हमारे LLRM के लिए ना थलाइवा भी आपका नाम हो सकता है। क्या? थलाइवा। थलाइवा, इट्स गुड नेम सर। क्या नाम है? थलाइवा सर, द बॉस। ओके, तलैवा। ओह, हाँ, और जैसे मतलब प्रॉपर रजनीकांत स्टाइल में ना सर, कुछ अनमिस्ड नहीं रहेगा, सब कुछ आंखों से एक बार क्रॉस करेगा। अच्छा लीना और विनय, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है, आपको ये एक वो इंटरव्यू बताया खत्म था, करना है। रैम्बो। Yes, sir. वही है सर, वही है मैंने आपको बताया था सर, मैंने आपको बताया था ये रैम्बो नाम। सर। रैम्बो मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि आप ओमनी प्रेजेंट, हर चीज को पूरे अच्छे से देख के प्रोबेबली ना, और आपकी नजर हर चीज को कवर करती थी ना, इसलिए शायद कोई बच्चा नहीं बचा आज तक आपसे। सर इसी तरह अगला- फिर आगे बढ़ते हुए अगला- आपका ये पूछना है, विनय विनय, पूछना विनय। चाहते हैं पर मैं पूछ रही हूँ। विनय है, तुम्हारे मैं पूछूं? क्वेश्चन हाईजैक हो रहे हैं भाई। कोई विनय दिक्कत नहीं है। नहीं, वो हाँ, टाइम कम है ना, इसलिए मेरे को हाँ टेंशन हो रही है। जल्दी you जल्दी can, you can, बिल्कुल। you सर can मुझे proceed. ये बताइए, हम लोग को आप सच्ची में दोनों हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम? क्योंकि हम लोग अमेज्ड रहते थे आपकी एंट्री, जब तक क्लास एंट्री हो रही है आपका डायग्राम तैयार होता था। आप ना उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे कि बच्चे आएंगे तब क्लास शुरू होगी, मैं तब ड्राइंग बनाऊंगा। आप पूरा अपना सेंसरी मोटर न्यूरॉन सिस्टम पूरा खींच के तैयार कर देते थे, और उसके बाद बच्चे अरे अब इसे कॉपी कैसे करेंगे? तो आप दोनों हाथ से ड्रॉ कर सकते थे क्या? नहीं, वो गलत है। वेरी रेयरली जो है, कभी कभी एक दूसरी हाथ से जो है हम लेबलिंग के लिए कुछ करते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ विद बोथ द हैंड्स। उतना ट्रेनिंग तो मैंने लिया नहीं, मैंने सोचा भी नहीं है। मैं और- एक छोटी सी बात बताऊंगा लीना आपसे, कि जब किसी एनाटॉमिस्ट से बच्चे बहुत प्यार करते हैं तो ये सबसे फेवरेट मिथ होती है कि वो दोनों हाथों से डायग्राम बना सकता है। बिल्कुल है कि नहीं सर? ये बहुत सारे टीचर्स के बारे में है। एक हाथ हाँ। में जो है चाकपीस रखता हूँ, डस्टर रखता हूँ, दूसरे हाथ में बनाता हूँ, तो कभी कभी जो है ऐसे Yeah. जो हैंड का मूवमेंट्स हैं, वो बच्चों को लगता होगा कि भाई उन्होंने दूसरे हाथ से भी बना रहा। हाँ ठीक है। दूसरा ये जो मिथ है, जो भी है, सीनियर ने बता दिया होगा कि आपका भी रमेश बाबू जो है दोनों हाथ से बनाते हैं, तो आप एक प्री कंसीव लेके आते हैं, तो आपको लगता है मेरा दूसरी हाथ का दोनों हाथ मूवमेंट भी चल रहा है। ऐसे लगता है कि मैं अपने डायग्राम बना रहा हूँ। अगला सवाल विनय। सर अगर मैंने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा सर, कि अगर आप टीचर ना होते तो आप किस दूसरे प्रोफेशन में इतने सक्सेसफुल होते? आपको लगता है आपका दूसरा ड्रीम प्रोफेशन सर क्या होता? मैं ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं है, जो मिला वो ज्वाइन किया, जो नौकरी मिला नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो उस टाइप का प्लान्ड वे में चलता नहीं था पिछली बार। हाँ, ओके। आई मीन अपॉर्चुनिटीज कम, अब तो टारगेटेड वो ओरिएंटेड वो चल रहा, बट एट माय टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल। सो जो मिला हमने पढ़ा, एनाटॉमी
हमने माइक्रोबायोलॉजी को भी अप्लाई किया था, बायोकेमिस्ट्री अप्लाई किया था, एनाटॉमी अप्लाई किया था। एनाटॉमी में सिलेक्शन हुआ, एनाटॉमी पढ़ लिया, लेक्चरर बन गया। लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं मन लगा के करें, दैट इज माई मेन एफर्ट्स। प्रयास भी करना चाहिए उस तरह, ताकि जो आप काम करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। बिल्कुल सर। जी सर। माय फेवरेट क्वेश्चन सर, कुकिंग इज अ नेसेसिटी और योर हॉबी सर? Both. Both. It was a hobby also. I mean, before my marriage, जैसे यहाँ आया था कि नॉर्थ इंडियन फूड जो है शुरू में हमें बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो देन आई यूज्ड टू प्रिपेयर। तो मैं खुद ही जो है आई मीन मेरे मम्मी ने जो अपना रेसिपी बना के जो है लिख के भेज देती थी, उसी को फॉलो करते हुए आई यूज्ड टू कुक। जैसे अच्छा लगा, लोगों को खिलाता था, उनको पसंद आता था, तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट आता कि भाई हम कुछ बनाऊं खिलाऊं। तो व्हेन वी आर ऑल बैचलर्स इन अर्ली आई मीन 76, 77, 78 में, तो उस वक्त कई बार जो है संडेज में हम कुक करके शेयर करके खाते थे। जी सर। सर बेस्ट डिश जो आप कुक करते थे वो कौन सी होती थी, सबसे बढ़िया जो आपको लगता था? कर्ड राइस बनाता हूँ बहुत अच्छा। रेसिपी लेंगे सर। सर एनाटॉमी का वाइवा सबसे पहला वाइवा होता है, और उसमें सबसे ज्यादा हालत खराब होती है बच्चों की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो सर ऐसा कोई मजेदार चीज बताइए, पूछा गया कुछ, बच्चे ने उठाया कुछ और हुआ कुछ ऐसा याद है आपके लिए? तो सर ये कॉमन होता होगा, क्योंकि एनाटॉमी के वाइवा में तो सबकी जान निकली रहती है। नहीं, हमने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कोई बदल के जो है जवाब नहीं दे सकता। तो आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट वॉट एवर लिटिल दे नो फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्टूडेंट बाय डिफरेंटली आस्किंग एंड सपोर्टिंग हिम और हर। तो डेफिनेटली मेरे साथ जो है थोड़ा से इनिबिशन नहीं होता था, या जो कहेंगे बाय, वो नहीं होता था। तो सर आपका और शकुंतला मैडम का ये ध्यान है हम लोग को, आप लोग हम लोग से आंसर निकलवाते थे? हम निकलवाते थे। हमें मेरा आइडिया है कि we have to assess what little they know, not that I ask a question, if they don't know mark is 0. No, जो वो जानता है उसे एक्सट्रैक्ट करना वो मेरा काम है। तो दैट इज माय थॉट। तो इसलिए मैं प्यार से पूछता था, लोग बताते थे, ऐसी बात नहीं है, एंड देन आई यूज्ड टू असेस। और दूसरा, क्योंकि मैं कोई ज्यादा नहीं डांटता था, आई थिंक मैं बिलीव करता हूँ कि मुझसे वो इनिबिशन नहीं होता बच्चों में कि इनके सामने जो है कुछ ना बोलो, ऐसे है ना। एक तरफ से डर होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो मैं दूर कर। लीना, हमारा जो है अंतिम पड़ाव की तरफ है। आई थिंक फटाफट से 2-3 सवाल आप जो है पूछ लीजिए। एक तो मेरे ख्याल ये जानना चाहेंगे सर, अगर कॉलेज के नाम पे कोई सॉन्ग अगर सर डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा सॉन्ग सर आप गुनगुनाएंगे कॉलेज के लिए? अरे भैया, मैं तो कोई ज्यादा फिल्मी सॉन्ग वगैरह जो है मुझे याद भी नहीं है। मैं सुनता हूँ ऐसे, बट आई डोंट रिमेम्बर। हमारे OSA 98 को सपोर्ट करने के लिए मेरिट आने का क्या प्रोग्राम है सर? हम लोग बहुत खुश होंगे कि आप लोग अगर आ पाए। आपका इनविटेशन हो तो जरूर आएंगे। मैं अपना मतलब ये हम लोग की तरफ से ही बोलेंगे कि पूरा बैच चाहेगा, हम लोग जितने भी सर टीचर्स लोग को इस बार ज्वाइन कर सके, क्योंकि सर आप लोग का आशीर्वाद रहने से मतलब हम लोग को ना अभी भी बचपना फील होता है। एक्चुअली हमारा 25th है इस बार, सिल्वर जुबली है, बट आप लोग मतलब हम लोग को ऐसे ब्लेसिंग्स देने आएंगे तो हम लोग अभी भी बच्चों जैसा ही फील करते हैं उस चीज के लिए। तो वी वुड रियली लव टू हैव यू। आई मीन 99% जो है मैं जरूर आऊंगा। बढ़िया। हम क्योंकि इंटरव्यू का अंतिम पड़ाव है, जाते जाते सर मैं चाहूंगा आप ई ब्लास्ट के लिए जो है कुछ संदेश ई ब्लास्ट की टीम को भेजें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है सर वो है कि सारे जो LLRM के स्टूडेंट्स हैं, सारे जो टीचर्स हैं, उनको हम कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और इसी के तहत हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं सर सारे टीचर्स का और सीनियर्स का। तो मैं चाहूंगा सर टीम के लिए आप कुछ शब्द कहें। It's an excellent idea of starting a e-blast and connecting all your seniors and juniors with you,
and I wish very best and all success for your arrangements you are making. And because you have shifted to LLR Medical College campus again to celebrate your silver jubilee, and that makes me very, very happy. That this celebration should be done in the campus only. We have an opportunity to meet, to exchange ideas. So best wishes for all your batchmates for your success of your silver jubilee celebrations, and also for the eBlast team for connecting all of us together in one platform. That is excellent idea and memorable feelings, because in SMCT whatever that booklet is published, the same pages you are again repeating. So you just brush up your memories, earlier memories of 25 years with you. So I wish all the best, and definitely I will try my level best. 99% I told you to participate in your WOSA 2023 and be with you to brush up my memories also with your batch. थैंक यू सो मच. All एंड the best. लीना, मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारा इंटरव्यू अब जो है खत्म हो गया है, मेरा तो मन नहीं कर रहा इस इंटरव्यू को छोड़ने का. मैं चाहता हूं कुछ लाइनों के साथ आप इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें, और सारे 98 बैच की तरफ से हम लोग चाहेंगे कि हम सब लोग सर को जो है कुछ अच्छा सा कुछ कहें आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से इनफैक्ट. सर आपके लिए हम लोग की तरफ से बस यही कहना है कि सर आप यू आर आवर फर्स्ट विजन, यू आर आवर फर्स्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट जिसने हमको एमबीबीएस से इंट्रोड्यूस इतने स्वीटली कराया. मेरे ख्याल से एनाटॉमी ही ऐसी चीज होती है जो बैकबोन ऑफ ऑल एमबीबीएस सब्जेक्ट्स है. आपने ऐसी अमिट छाप हर बैच पे छोड़ी है, और आपका ये कहना कि हाँ वापस LLRM में हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बचपन का मेमोरीज है. हमेशा 25th को OSA मीटिंग होनी है, और हमेशा कैंपस के ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 में ही होनी थी. ये चीज़ एक्चुअली हमारे जो बैच के सबने ऑफिस बेयर्स ने कंट्रीब्यूट करके इसको कैसे लेकर आए हैं, दैट इज़ अ रियल गुड थिंग. और हम लोग सर एकदम चाहेंगे कि आप प्लीज यहाँ पर आए और अपना हम लोग को आशीर्वाद दे. एंड आई थिंक गेटिंग बैक इनटू LLRM, हम लोग का चांसेस ऑफ मीटिंग मोर डॉक्टर्स पीपल, अब कुछ लोग बहुत एल्डरली होके भी नहीं आ पाते हैं, बट LLRM में होस्ट होने से आई थिंक सब खींचे चले आएंगे. तो सर वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम एट योर एंड. प्लीज आइएगा और हम लोग को आशीर्वाद दीजिएगा. हम जरूर आएंगे लीना. आई विल डेफिनेटली कम. सर से बात करते हुए एक अरसा मेरा बीता है, और सर से हमेशा एक बार फिर बात करने का मन हमेशा ही रहता है. मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं सर के साक्षात्कार में शामिल हूँ और सर से कुछ सवाल किए. ज्यादातर सवाल सर की तरफ से होते हैं, मैं आंसर देता आया. आज मतलब कभी कभी मौका मिलता है कि सर से सवाल हो और सर जवाब दें, तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है. मैं फ्यूचर में भी ऐसा चाहूंगा कि ऐसे साक्षात्कार और ऐसे इंटरव्यू सर के साथ होते रहे और वो आते रहें, और हमेशा वेलकम. मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड से भी ज्यादा हमारा प्यार सर को खींच लाएगा. 100% ऐसा लगता है कि आना ही होगा सर को. जिस तरह से सर इतना प्यार करते हैं हमसे, हमें लगता है कि खुद ही सर आएंगे और हमें तो केवल वेलकम की तैयारी करनी है. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का इस इंटरव्यू के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर, आज अपना टाइम निकालने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच इंटरेक्टिंग विद मी. और पूरे 98 बैच की तरफ से सर हाथ जोड़ के प्रणाम आपको. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट विशेस.